Good afternoon, everyone. I welcome you back in the e-learning program organized by Sri Vidyadhish Vidya Sankul under the guidance of Dr. G.M. Sutaria sir. Today we are going to continue with our lecture number 13 and we will start today lesson number 4, that is membership. In the previous lectures we have completed up till lesson number 3 and I hope you all must have completed your fair books up till lesson number 3. So 1, 2 and 3 are over and today we will begin with chapter number 4, that says membership. Now membership is what? Generally it is believed that normally if you ask to a layman, they'll be saying the one who holds the shares is or automatically becomes the member, but it is not like that. The shareholders and the members are two different people. Although members could have shares and shareholders could also have the membership, so that is different thing, but they are not the same. All right, to be a member your name should be registered in the register of member. आपका नाम जो होगा वो member of register of member में register होना चाहिए, लिखा हुआ होना चाहिए. हर shareholders का नाम register of member में नहीं लिखा होता है. So shareholder could not be a member and could be a member, so it's not compulsion. But generally हम लोग consider ऐसे ही करते हैं that in general language में they are synonyms के way में they are being used. That member बोलो या shareholder बोलो दोनों को same ही consider करते हैं, but it is not like that. So in this chapter we are going to learn who can be a member and what is the first important thing is what is the difference between the shareholder and a member. Okay, so member और shareholder का difference जानना is very important in this chapter. हर चैप्टर में ना कुछ कंसेप्ट्स ऐसे होंगे जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होंगे कि वो तो तुमको पता होने ही चाहिए. वेदर यू आर सीइंग these things in the perspective of marks or whether being concepts, you should be knowing certain things. And here in this chapter the most important thing is that you should be knowing what is the difference between member and what is the difference members and the shareholders. All right, so let's begin. The introduction part says that a company invites the public to subscribe its security by issuing prospectus. You know it कि public कभी भी invite करती है company तो वो prospectus issue करती है, right? That is invitation जो last time बहुत अच्छे से तुमने किया था सबने. In response to that, potential investors apply to purchase the shares. जो investors को potential है, उनकी capacity है लेने की, वो लोग shares खरीदने के लिए apply कर देते हैं. Company collects application and classify them. Company फिर उनकी applications receive करती है और फिर वो applications को classify करती है. It is also it also decides the allotment policy in consultation with representative of the share market. जैसे उनके पास एप्लीकेशंस आ जाती है फिर वो एप्लीकेशन कैसे अलॉट करनी है, कौन से शेयर होल्डर्स को ये एप्लीकेशन अलॉट करनी है वो डिसाइड होता है विद कंसल्टेशन विद रिप्रेजेंटेटिव ऑफ शेयर मार्केट एंड इवन अदर ऑफिसर्स आर ऑल्सो बीइंग देयर टू डिस्कस सच थिंग्स. After completion of share allotment, allotted shareholder name is registered in the register of member. Once they are being allotted, उनको shares allot किए जाते हैं तो allotted shareholders का नाम register of member में चढ़ाया जाता है और वो members बन जाते हैं. Thus they are considered as the member of the company. जैसे ही उनका नाम register of member में आता है, रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में जैसे ही उनका नाम आता है वो मेंबर्स बन जाते हैं. जैसे आज शेयर्स मैंने खरीदे तो आज मैं डायरेक्टली मेंबर नहीं बन जाऊंगी, जब मेरा नाम रजिस्टर ऑफ मेंबर में आएगा तभी मैं कंपनी की मेंबर बन सकती हूँ. दस दे आर कंसिडर्ड एज द मेंबर ऑफ द कंपनी एंड मेंबरशिप कैन बी ऑब्टेन इन अदर वेज ऑल्सो. अभी ज़रूरी नहीं है सिर्फ आप शेयर्स खरीद के ही आप मेंबरशिप ले सकते हो. बीइंग मेंबर ऑफ अ कंपनी
being member of company, certain rights are acquired. In the same way, certain responsibility is also to be carried out. कुछ अगर आप membership लेते हो तो ultimately आपको कुछ rights भी मिलते हैं और आपको कुछ उसके साथ responsibilities भी मिलती है जो तुम ये chapters में सीखोगे. Alright, so let's move ahead. Meaning and definition of membership, ये आती है 1 mark में बहुत बार definition उसकी, so you should be knowing and make a star on it. A person is, what is the meaning? A person is considered to be a member when his name is registered by written consent or through share application. Okay, a person is considered to be a member when he is considered to be a member when his name is registered by written consent or through share application. या तो वो written consent दे रहा है कि मुझे ये कंपनी का member बनना है and through the share application, और या फिर share applications देता है और उसके बाद procedure, after some procedure his name is being entered in the name of in the register of members. In short, to be a member, a written consent and his name should be in register of member are required. So in short, कहीं पे भी तुम घूम फिर के बात तो यही आई कि तुम्हारा नाम रजिस्टर ऑफ मेंबर में लिखा हुआ होना चाहिए. तो समझ लो इसका कीवर्ड इज रजिस्टर ऑफ मेंबर. सो व्हेनेवर यू राइट समथिंग अबाउट मेंबरशिप यू शुड बी नोइंग द वर्ड रजिस्टर ऑफ मेंबर्स. तो कहीं ना कहीं वो वर्ड तुम्हारे जो आंसर होना चाहिए वो लिख लेना चाहिए. सी थ्योरी सब्जेक्ट्स होता है ना, उसमें वोकैब्स बहुत इम्पॉर्टेंट है. जैसे वोकैब्स यानी क्या होता है, सपोज कि इफ़ आई एम राइटिंग अबाउट शेयर मार्केट तो उसके रिलेटेड कुछ वर्ड्स फिक्स ही होते हैं, राइट. कि मार्केट डाउन गया, मार्केट अप गया, बुल मार्केट एंड यू नो सर्टन थिंग्स, उसका राइज हुआ, उसका डिक्रीज हुआ. सो ये कुछ वर्ड्स है ना वो इन जनरल यूज़ होते ही है. तो यू शुड बी नोइंग. इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट मेंबरशिप तो रजिस्टर ऑफ मेंबर बार बार आएगा है, राइट. इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट द डिबेंचर तो बोरोड मनी, बोरोड कैपिटल ये बार बार आएगा. डिबेंचर ट्रस्टीज़ का नाम बार बार आएगा. सो ऐसे करके जो भी कोई भी चैप्टर है, कोई भी कंसेप्ट है ना, तो उसके रिलेटेड कुछ ना कुछ वोकैब्स होंगे. तो वो वोकैब्स को अंडरलाइन करना मत भूलना, सो दैट जब तुम कहीं कुछ भूल भी जाओगे ना तो तुमको वोकैब्स याद होंगे तो उसके ऊपर से तुमको याद आ जाए कि हाँ कि ये बोलना चाह रहा है. ऑलराइट, सो वोकैब्स आर इम्पॉर्टेंट. सो व्हेन यू लर्न थ्योरी, कोई भी सब्जेक्ट ले लो, कोई भी कंसेप्ट ले लो, उसके कुछ वर्ड्स अगर तुमको याद आ जाते हैं ना तो तुम पूरा आंसर खुद से ही फॉर्म करके लिख पाते हो, क्योंकि अल्टीमेटली तुमने समझा तो है ही, बट वी जस्ट फॉरगेट यू नो दैट व्हाट वी हैव अंडरस्टूड. कई बार ऐसा होगा तुम एग्जाम में ना शायद तुमको सब पता पड़ा होगा तो भी तुम शायद भूल जाओगे, बिकॉज यू फॉरगॉट द वोकैब्स, यू वॉन्ट बी गेटिंग द राइट वर्ड्स टू यू नो एंटर. सो मेक श्योर दैट सच राइट वर्ड्स यू ऑलवेज पुट अंडरलाइन, सो दैट वो तुमको बार बार रिफ्लेक्ट करे और तुम भूलो नहीं उसको. डेफिनेशन पे चलते हैं अभी. Now, according to the Companies Act, a member is a person who has subscribed to memorandum of association of a company. जब हमने लास्ट ईयर 11th स्टैंडर्ड में मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन पढ़ा था ना, तो उसमें मेंबर्स का एक कॉलम था जिसमें मेंबर्स ऑफ द कंपनी को अपना नेम, एड्रेस और यू नो अपनी सारी डिटेल्स उसमें मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में देनी पड़ेगी. एक क्लॉज मेंबर का भी था, राइट. सो मेंबर इज़ अ पर्सन. पहली बात तो वो होता है जिसने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में सब्सक्राइब किया होता है. अभी ज़रूरी नहीं है कि जिसने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में सब्सक्राइब किया हो उसके पास शेयर्स भी हो, वो शेयर होल्डर ना भी हो. ओके, सो एंड एवरी अदर पर्सन, एक ये तो होता है जिसने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में अपना नाम दिया है, वो तो होता ही है. एंड एवरी अदर पर्सन हु हैज़ अग्रीड इन राइटिंग टू बिकम अ मेंबर, और बाकी और भी मेंबर्स जिन्होंने अग्री किया है राइटिंग में दैट आई वांट टू बिकम अ member. According to Companies Act 2013, ये दूसरी डेफिनेशन है, ये भी लर्न कर सकते हो और ये भी लर्न कर सकते हो. According to Companies Act 2013, both are given by Companies Act itself. Shareholder may keep their shares with depository participants. Okay, अपने shares क्या होते हैं, depository participants के थ्रू हम लेते हैं. Okay, shareholders may keep their shares with depository participants. These shareholders are registered as beneficiary owner in the register of depository participants
considered as member of the company though they are not registered in companies members register. ओके तो ऐसे भी होता है क्योंकि आपने ये कब आता है, देखो ये डेफिनेशन कब दिया पता है 2013 में, कि जब, और ये डेफिनेशन जो ऊपर वाली डेफिनेशन दी है दिस डेफिनेशन इज गिवन बाय कंपनीज एक्ट जो 1956 में बना था, उसमें तब दी थी. ओके तब फिजिकल शेयर्स हुआ करते थे. अभी क्या शेयर्स हो चुके हैं, अभी कंपनी के शेयर इलेक्ट्रॉनिकल फॉर्म में डीमटेरियलाइज्ड हो चुके हैं. तो इसीलिए कंपनीज एक्ट 2013 की डेफिनेशन ऐसे बोलती है कि शेयर होल्डर में कीप देयर शेयर्स विद डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट. तुमको पता है तुमको अगर शेयर्स लेने हैं तो तुमको डीमेट अकाउंट चाहिए, और डीमेट अकाउंट कहाँ खुलाओगे, ब्रोकर्स के पास, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स के पास. ओके सो योर शेयर्स आर बीइंग केप्ट विद डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स ओनली, और वो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स अपने शेयर होल्डर्स के नाम देती है कंपनी को, और वो कंपनी क्या रजिस्टर करती है, कंपनी आपका नाम नहीं रजिस्टर करती है, कंपनी आपके डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट का नाम रजिस्टर करती है कि ये डीपी के ये शेयर्स हैं. और आप लोग का जो नाम होता है, जैसे मेरे शेयर्स है, आपके शेयर्स है, तो अपना नाम किस में आता है, बेनिफिशियरी ऑनर में आता है, कि इस सब का बेनिफिट आपको मिलेगा, यू नो, कि ऑल द ऑनर इज दिस ओनली डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट ओनली, बट आप उसके बेनिफिशियरी ऑनर्स हो, कि आपको ऑनरशिप्स के राइट्स हैं, कि आप अल्टीमेट ऑनर नहीं हो, तो भी आप का नाम रजिस्टर ऑफ मेंबर में कहलाएगा. जैसे कि देखो, शेयर होल्डर्स में कीप देयर शेयर्स विद डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स. दीज शेयर होल्डर्स आर रजिस्टर्ड एज beneficiary owner in the register of depository participants considered as members of company. और कंसिडर किया जाता है, होते नहीं है पर उनको कंसिडर किया जाता है मेंबर ऑफ द कंपनी दो दे आर नॉट रजिस्टर इन कंपनीज मेंबर्स ऑफ रजिस्टर. चाहे वो फिर भी उनका रजिस्टर ऑफ मेंबर में उनका नाम नहीं होता है, पर फिर भी उनको कंसिडर किया जाता है कि आप मेंबर्स हो. तो ये कब आता है, जब आपके शेयर्स डीमटेरियलाइज्ड फॉर्म में है तब. Alright, let's so these definition, देखो ये 2000, अगर तुमको एग्जाम में ऐसे बोले ना कि 2013 वाली डेफिनेशन लिखो, तो तुमको ये ही डेफिनेशन लिखनी पड़ेगी. ओके पर अगर तुमको ऐसे बोला कि डेफिनेशन लिखो मेंबर्स की, तो तुम ये भी फर्स्ट वन भी लिख सकते हो और सेकंड वन भी लिख सकते हो. सो इट इज़ एडवाइजेबल दैट जब तुमको लर्न करने की बारी आए तो तुम 2013 वाली लर्न करो, बिकॉज यू नो दिस विल बी हेल्पफुल टू यू इफ 2013 की पूछी या कोई भी डेफिनेशन पूछी, राइट. सो नाउ नेक्स्ट वन, इट इज मेंबर्स एंड द शेयर होल्डर. As I told you, in common practice in general, shareholders and members are used as सब्सटीट्यूट्स ऑफ ईच अदर, मतलब एक दूसरे के बदले यूज़ किए जाते हैं, राइट, के सिनोनिम्स के वे में, एक जैसे मीनिंग उनका कंसिडर किया जाता है, कि मेंबर बोलो या शेयर होल्डर बोलो, दोनों सेम कंसिडर करते हैं इन जनरल टर्म, इन कॉमन प्रैक्टिस. हाउएवर फ्रॉम द लीगल पॉइंट ऑफ व्यू देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन मेंबर एंड द शेयर होल्डर. पर अगर लीगली अगर देखा जाए, लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से, लॉ के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो दे बोथ आर डिफरेंट थिंग्स. मेंबर्स इज डिफरेंट एंड शेयर होल्डर्स आर डिफरेंट. सो लेट्स सी, टर्न द पेज एंड कम टू 120 पेज नंबर. ओके, एंड दैट सेज पर्सन मे बी अ मेंबर बट नॉट अ शेयर होल्डर. Alright, it could be happening that a person may be a member but he might not be holding shares. ये हो सकता है, राइट, कि आपका नाम रजिस्टर ऑफ मेंबर में है पर आपके पास कोई शेयर्स है नहीं. तो ऐसा कब होता है, अ पर्सन हु हैज साइंड द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बिकम्स मेंबर इमीडिएटली इवन दो ही हैज़ नॉट परचेज्ड द शेयर. कि जो पर्सन है जिसका नाम मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में है, राइट, उसका नाम, उसकी डिटेल्स, सब कुछ, उसका डिटेल्स, उसकी रिलेटेड ऑल सच डॉक्यूमेंट्स आर बीइंग सबमिटेड टू द कंपनी. ओके, एंड उनका नाम मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में एज अ मेंबर आ चुका है, बट इसका ये भी पॉसिबल है कि इमीडिएटली शायद उससे शेयर्स ना भी खरीदे हो, राइट, या फिर
वो शेयर्स अभी कंपनी फॉर्म नहीं होती उसके पहले ये मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बनता है, और शेयर्स कब आते हैं जब कंपनी रजिस्टर होती है, और मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बिफोर रजिस्ट्रेशन यू हैव टू मेक इट राइट। तो तब ऑब्वियसली शेयर्स उसके इशू नहीं हुए तो खरीदेंगे कहाँ से। तो इवन दो दे हैव नॉट परचेस्ड द शेयर बट दे बिकम्स द मेंबर ऑफ द कंपनी। सेकेंड कंडीशन क्या है, इन अ कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, अगर कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी है मतलब उसके शेयर्स नहीं है, तो member who has given guarantee for certain amount is considered as member even he has no shares। ओके, कंपनी देखो गारंटी में भी दो कंडीशंस होती है, कंपनीज लिमिटेड बाय गारंटी हैविंग शेयर कैपिटल, कंपनीज लिमिटेड बाय गारंटी हैविंग नॉट हैविंग शेयर कैपिटल। तो इवन इफ द कंपनी हैज डोंट हैव शेयर कैपिटल, अगर शेयर कैपिटल है ही नहीं तो वो गारंटी होल्डर्स जो जिन्होंने गारंटी दी है कुछ अमाउंट की वही शेयर होल्डर्स बन जाए, वही उसके मेंबर्स बनेंगे। और अगर इट मे हैपन कि जिसने गारंटी ली उसे शेयर्स ना परचेज करे तो भी वो मेंबर तो कहलाएगा ही। ओके, सो इन अ कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, member who has given guarantee of certain amount, जिसने गारंटी दी है certain अमाउंट की, कुछ अमाउंट की, they are also considered as member even if he has no share, even though उसके पास शेयर्स नहीं है पर वो मेंबर तो कहलाएगा ही कंपनी का। ओके, नेक्स्ट वन इज थर्ड वन, द पर्सन हु हैज ट्रांसफर्ड हिज शेयर्स टू अदर नेम्स, ओके, and is no longer a shareholder, however he remains as member until his name is deleted from रजिस्टर ऑफ मेंबर। आज मैंने अपने शेयर्स किसी और को ट्रांसफ़र किए तो वो इमीडिएटली ट्रांसफ़र नहीं हो जाते, इट टेक्स फ्यू डेज टू मेक द ट्रांसफॉर्म। ओके, प्लस शेयर ट्रांसफ़र हो गए पर रजिस्टर ऑफ मेंबर में उसकी एंट्री सबसे लास्ट में होती है, तो जब तक नए शेयर होल्डर्स की ट्रांसफ़र नहीं हो जाती है, नाम आ नहीं जाता है, तब तक वो पुराना शेयर होल्डर चाहे उसने अपने शेयर बेच दिए वो मेंबर कहलाएगा। तो जो भी मेंबर्स के राइट्स होंगे, मेंबर्स के जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटियाँ होगी वो उसको लेनी रहेगी जब तक उसका नाम डिलीट नहीं हो जाता रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में से। Number 4 is a company without share capital has no shareholder but still there are members। ऐसी भी कंपनीज होती है जो शेयर कैपिटल के बिना रजिस्टर हुई होती है पर उनके मेंबर्स तो होते ही है, बिकॉज कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन, सो हु विल रन दोस कंपनी, दैट कंपनी, सो द मेंबर्स ऑफ द कंपनी विल रन द कंपनी। Alright, so company without share capital has no shareholders but still they are members। So 4 conditions हमने सीखी। The first one is the one who has signed the memorandum of association, okay, they become immediate members। And company limited by guarantees में क्या हो जाएगा, that person who has given the guarantee for certain amount even though he has no shares, अगर उसके पास शेयर नहीं भी है तो भी वो member कहलाएगा। And in case of transfer of the share, जब तक उसका until his name is deleted from the register of members, he is a member of the company। A company without share capital has, without share capital वाली कंपनी के क्या होगा, उसके no shareholder है but still they are the members of the company। Clear to everyone up till this? Okay, so person may be a member but not a shareholder। member है पर उसके पास शेयर होल्डिंग है नहीं, तो ये 2 मार्क्स में पूछा जा सकता है। राइट अबाउट द पर्सन हु इज़ अ मेंबर बट हु इज़ नॉट अ शेयर होल्डर, या इट कुड बी ऑल्सो आस्क्ड इन विच कंडीशंस अ पर्सन इज कंसिडर्ड एज अ मेंबर बट ही इज़ नॉट हैविंग शेयर कैपिटल। सो डिफरेंट वे में क्वेश्चन कैन बी फॉर्म्ड एंड डिफरेंट वे में इट कुड बी आस्क्ड इन योर एग्जाम। ओके, मूविंग अहेड इज पर्सन हु मे बी अ शेयर होल्डर बट नॉट अ मेंबर। अभी उसके पास शेयर होल्डिंग है पर वो मेंबर नहीं है, ऐसा किस केस में होएगा। सो द पर्सन हु हैज़ परचेस्ड शेयर इज़ अ शेयर होल्डर, जो परचेस करेगा शेयर वो शेयर होल्डर कहलाएगा। बट इफ ही हैज़ नॉट एंटर्ड हिज नेम इन रजिस्टर ऑफ मेंबर ही इज़ नॉट कंसिडर्ड एज अ मेंबर। शेयर्स आपने किसी से ट्रांसफ़र लेना था, आपने ले लिया, पर अभी भी उसका नाम उस रजिस्टर ऑफ मेंबर में से रिमूव नहीं किया गया है और आपकी नई एंट्री नहीं हुई है, तो तब तक वही पुराना होल्डर ही उसका मेंबर होगा। सो पर्सन हु हैज़ परचेज शेयर इज़ अ शेयर होल्डर, ही बिकेम शेयर होल्डर, उससे परचेज कर लिए। बट इफ़ ही हैज़ नॉट एंटर्ड हिज नेम इन रजिस्टर ऑफ मेंबर तो फिर ही इज़ नॉट अ मेंबर। इन केस ऑफ डेथ ऑफ शेयर होल्डर, शेयर होल्डर की डेथ हो गई, ही इज लीगल रिप्रेजेंटेटिव बिकम्स शेयर होल्डर, उसके शेयर होल्डर बन जाते हैं, बट इज आर नॉट
members till he is not registered in register of member. पर अगर उसकी प्रोसीजर के लिए सपोज कोर्ट ने कोई लीगल पर्सन को अपॉइंट किया है, जैसे हमने देखा था राइट, रिसीवर को अपॉइंट करते हैं, तो तब तक उसके हाथ में ही शेयर होल्डिंग है उसका. सो जो अभी लीगल हायर होगा जो पर्सन जिसकी डेथ हुई है, तो अभी उसको मेंबरशिप के राइट्स अभी ना भी मिले. ऑलराइट, afterwards, so this is the condition, person may be a shareholder but not a member. In case of transfer, इसमें देखो दो ही होती है. जब ट्रांसफ़र होता है तो और उसका नाम अभी भी रजिस्टर ऑफ मेंबर में नहीं आया, तो ही इज़ नॉट अ मेंबर. और डेथ ऑफ अ शेयर होल्डर में क्या हो जाएगा, लीगल रिप्रेजेंटेटिव शेयर होल्डर तो बन जाते हैं, बट वो मेंबर नहीं बनते. कब तक नहीं बनते, टिल ही इज़ नॉट रजिस्टर्ड इन द रजिस्टर ऑफ मेंबर. बट आफ्टर सर्टन टाइम देयर नेम इज़ बीइंग रजिस्टर्ड इन द रजिस्टर ऑफ मेंबर एंड दे बिकम द मेंबर ऑफ द कंपनी. ओके, तो ये दो कंडीशंस जो है वो एग्जाम में पूछी जा सकती है. अबाउट अ पर्सन मे बी अ मेंबर एंड नॉट शेयर होल्डर, एंड अ पर्सन मे बी अ शेयर होल्डर बट नॉट अ member. So by that only you should be clear with what is member and what is shareholder. So on that base this topic again, देखो जो भी differences होते हैं ना वो बहुत important होते हैं, क्योंकि उसी से ही तुम्हारा पता चलता है that you know such concepts or you don't know such concepts. Okay, so difference between member and the shareholders will be doing. The first one, it is member and shareholder. So as I told you, everywhere the first topic should be meaning of the same. अगेन डिफरेंस होता है तो पहले सीरियल नंबर, फिर पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस, फिर जो उसके हेडिंग्स हो वो लिखने चाहिए, सो दैट इट विल मेक योर आंसर लुक अट्रैक्टिव. इफ यू विल ड्रॉ सच काइंड ऑफ टेबल, सो यू नो द चांसेस आर देयर दैट यू विल गेट फुल मार्क्स. ओके, द पर्सन, नाउ लेट्स रीड द मीनिंग ऑफ अ मेंबर. The person is a member by written consent or his name is registered by share application in members register. ओके, पर्सन इज अ मेंबर. कैसे मेंबर बनता है, बाय रिटन कंसेंट. या तो आप रिटन कंसेंट दे रहे हो कि मुझे मेंबर बनना है एंड यू नो बिकम द मेंबर, और हीज नेम इज रजिस्टर्ड बाय शेयर एप्लीकेशन इन मेंबर्स रजिस्टर. तो आपने फर्स्ट एप्लीकेशन किया है, उसी में आपका नाम मेंबर ऑफ रजिस्टर में आ गया है. बट शेयर होल्डर क्या होता है, अ पर्सन हु होल्ड्स शेयर्स इज नोन एज शेयर होल्डर. बहुत सिंपल डेफिनेशन है, जिसके पास शेयर्स है वो शेयर होल्डर कहलाएगा. वेरी सिंपल इट इज. ओके, सो डेफिनेशन अभी देखो, इससे मीनिंग में तुम उसकी डेफिनेशन भी लिख लेते हो तो इट विल वर्क. तुमको उसकी कोई मार्क्स नहीं कट करेंगे कि हाँ तुमने जो बुक में दी है वही नहीं लिखी, पर तुम उसका मीनिंग या फिर तुम उसकी डेफिनेशन जो तुमने पहले पढ़ी उसमें से भी लिखोगे तो इट विल वर्क. यू विल गेट फुल मार्क्स. देयर इज नो पॉइंट दैट नोबडी इज गोइंग टू कट योर मार्क्स. Number 2, it is signature. Okay, who can sign? A person who has signed the memorandum of association is considered as member. जिसने memorandum of association में sign कर ली, okay, उसका नाम memorandum of association में आ गया, which means they became the member of the company. शेयर होल्डर्स की इसमें क्या होता है, शेयर होल्डर सिग्नेचर इज नॉट नेसेसरी इन मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन. हर शेयर होल्डर का नाम मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में आए ऐसा कोई भी कंडीशन दी गई नहीं है. पर मेंबर का नाम पर आपने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में साइन किया है तो आप मेंबर तो उसके बनोगे, चाहे आप शेयर होल्डर ना भी बनो पर उसके मेंबर्स तो आप बन गए. पर शेयर होल्डर्स की सिग्नेचर की कहीं पे भी ज़रूरत होती नहीं है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में. सो देयर इज़ नो नीड ऑफ सिग्नेचर इन मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन. ओके, नेक्स्ट इज ट्रांसमिशन ऑफ द शेयर्स. व्हेन यू ट्रांसमिट योर शेयर्स, ट्रांसमिशन अभी तुमको पता होना चाहिए कि कंपलसरी जब ट्रांसफ़र होता है तो उसको ट्रांसमिशन बोलते हैं. Okay, that in case of death or in case of insolvency or in case of the unsoundness of the mind, in those cases transmission of the share होता है. तो members में क्या होता है, legal representative becomes a member after transfer of shares and entry of this of his name register of member. Alright, so what is written here is legal representative जो होगा उसका, they becomes the member of that company. But when after transfer of share and entry of his name in the register of
मेंबर, कि जब शेयर ट्रांसफ़र भी हो गए और एंट्री रजिस्टर ऑफ मेंबर में उसकी एंट्री भी हो चुकी है, तब आप उसके मेंबर्स बनोगे। बट शेयर होल्डिंग के लिए क्या चाहिए? लीगल रिप्रेजेंटेटिव बिकम शेयर होल्डर आफ्टर ट्रांसमिशन ऑफ शेयर। जैसे ही ट्रांसमिशन हुआ आप उसके शेयर होल्डर बन गए, ओके। पर मेंबर बनने के लिए उसकी एंट्री, उसके नेम की एंट्री रजिस्टर ऑफ मेंबर में होगी, उसके बाद आप उसके मेंबर कहलाओगे। पर शेयर होल्डर तो आप तभी बन जाओगे जब आपके अकाउंट में उसके शेयर्स आ जाएंगे, ओके। सो दिस इज़ अबाउट शेयर difference between the shareholder and the member. You should be knowing it. 3 marks में it could be asked. Alright, so the 2 major topics we have completed. Now we will be moving to the next topic, and this is very important, that who can acquire a membership. कौन member बन सकता है कंपनी का, which is very important to be known. Okay, so let's read ahead. A company that comes into existence by law is an artificial person, right? You all know that a company is an artificial person. It can exercise rights as a living person, okay? It can exercise, उसके rights जो होते हैं living person की तरह वो exercise कर सकती है, use कर सकती है. According to law, any independent existence and personality until unit can be member of the company, okay. According to law, any independent existence and personality unit can be member of the company. कोई भी member बन सकता है, right? Independent existence जिसका हो वो member बन सकता है. For this, provision of articles of association should be observed. कि आपकी कंपनी में आप किसको मेंबर बनाना चाहते हो वो आपने आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में लिखा होगा, तो पहले आपको अपना आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन चेक करना पड़ेगा. नाउ द फॉलोइंग पर्सन और द इंस्टीट्यूशन कैन बी मेड मेंबर्स. तो ये अभी जो नीचे दिए गए लोग हैं वो कभी भी मेंबर्स आपकी कंपनी के बन सकते हैं. लेट्स रीड वन बाय वन. द वेरी फर्स्ट इज लिविंग पर्सन. कोई भी लिविंग पर्सन, आई, यू, वी ऑल आर लिविंग पर्सन, राइट? एंड वी कैन बिकम द मेंबर्स ऑफ द कंपनी. लिविंग पर्सन बोला है, लिविंग थिंग नहीं बोला है, विच मीन्स नॉट द एनिमल्स एंड द बर्ड्स कैन बिकम द मेंबर. लिविंग पर्सन, दे आर नॉट द पर्सन, राइट? बर्ड्स एंड एनिमल्स आर नॉट द पर्सन. सो लिविंग पर्सन कैन बिकम अ मेंबर. So membership of a company is availed by contract between person and the company. Okay, membership of the company is availed by contract. Contract between whom? A person and the company. ये contract होता है person और the company के बीच में. According to Indian Contract Act, any living individual person capable to do agreement can be a member of the company. Capable to do agreement मतलब जो 18+ होगा, उसकी एज 18+ होगी, वो साउंड माइंडेड होगा, वो इंसॉल्वेंट डिक्लेयर नहीं है, ओके. सो उसके भी कुछ कंडीशंस होती है कि जो एग्रीमेंट करने के लायक होता है. तो आप 18 अबव होने चाहिए हो, आप साउंड माइंडेड होने चाहिए हो, ओके. आप का कोई मेंटल अनस्टेबिलिटी नहीं होना चाहिए, आप इंसॉल्वेंट नहीं होनी चाहिए, okay. So there are certain other conditions to enter into the agreement. So according to Indian Contract Act, any living individual person capable to do agreement can be a member of the company, okay. The person who is not capable to do agreement cannot be a member. That is minor, इंसॉल्वेंट, पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंडेड, राइट? माइनर 18 से नीचे है तो आप नहीं बन सकते हो, ओके. पर्सन हु इज़ नॉट कैपेबल टू डू अग्रीमेंट. अगर आप माइनर हो तो आप अग्रीमेंट के लिए आप कैपेबल नहीं हो. इंसॉल्वेंट आप डिक्लेयर हो चुके हो तो आप अग्रीमेंट के लिए रेडी नहीं हो अभी. पर्सन विद अनसाउंड माइंड है, आपका दिमाग नहीं चल रहा है, पागल हो चुके हो, तो ऑब्वियसली किसी पागल को लिविंग पर्सन को वी वॉन्ट बी लेटिंग देम टू बी अ मेंबर ऑफ द कंपनी, बिकॉज अल्टीमेटली मेंबर्स का जो वोट होता है वो कंसिडर किया जाता है उसके मैनेजमेंट में. सो डेफिनेटली वी वॉन्ट पर्सन विद द स्टेबिलिटी, वी वॉन्ट पर्सन विद द साउंडनेस ऑफ द माइंड एंड इंटेलेक्चुअल्स, right? Under certain circumstances,
द इंडियन एक्ट हैज़ एक्सेप्टेड माइनर ऑल्सो मे बी मेंबर। अभी ये जनरली होता है अंडर सर्टन सर्कमस्टेंसेस, मतलब वो कोई ऐसे सर्कमस्टेंसेस वो दिए जाते हैं जिस एज पर इंडियन एक्ट कि उसमें मेंबर माइनर्स को भी बनाया जा सकता है। पर ऐसे केसेस ट्रांसमिशन के टाइम में होता है जब डेथ ऑफ द पर्सन हो जाती है और उसके जो लीगल हायर्स होते हैं वो माइनर होते हैं, उसके बच्चे होते हैं, तो इन सच केसेस it is being considered. All right, so let's move ahead to now page number 121. Okay, next one. अभी देखो ये person, living person can become a member of the company. Let's see who else can become a member of the company. So the partners of the firm. Okay, so according to legal term, partnership firm is not a person, so it cannot be a member. देखो partners of the firm नहीं बन सकती. Suppose A and B are partners and their firm is A and B firm. Okay, A and B and Sons or something like that, उसका जो भी नाम हो, तो वो as a firm A and B cannot be a partner, cannot become a member, but individually A personally apply करना चाहता है तो कर सकता है, B personally apply करना चाहता है तो they can become the member. So according to legal term, because partnership is not a person, partnership को as a person का capability नहीं दिया गया, so they cannot become the member. बट पार्टनर्स ऑफ द फर्म इंडिविजुअली और जॉइंटली दोनों मिल के लेना चाहते हैं या फिर इंडिविजुअली लेना चाहते हैं तो वो लोग पार्टनर्स मेंबर्स बन सकते हैं कि जॉइंटली दोनों ए एंड बी मिल के जॉइंट अकाउंट में शेयर्स ये मेंबरशिप लेना चाहते हैं तो दे कैन टेक, बट दे कैन नॉट गो इंडिविजुअल, दे कैन नॉट रजिस्टर देयर नेम एज अ फर्म के बेस के पे ऊपर नहीं, पर खुद के इंडिविजुअली या फिर जॉइंटली वो लोग ले सकते हैं मेंबरशिप. Okay, then Hindu Undivided Family, HUF, you must be knowing if you have studied your OC subject well. Hindu Undivided Families means what कि जब हिंदूज़ का ये रूल होता है कि they are much into business, so when they are registered as HUF, Hindu Undivided Family, joint families सारी पहले मिलके बिजनेस करते थे तो उनका एक अलग ही बिजनेस फॉर्म हुआ करता था which is Hindu Undivided Family. तो इसमें जो फैमिली के सारे मेंबर्स होते हैं ना वो उसके हकदार हो जाते हैं उसके बिजनेस के. जैसे पार्टनरशिप फॉर्म में कैसे पार्टनर्स होते हैं, इसमें हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में सारे फैमिली के मेंबर्स आर कंसिडर्ड एज मेंबर ऑफ द फर्म. Okay, so HUF family cannot become member in a company, but only कर्ता. अभी कर्ता क्या होता है उसका, कर्ता यानी जो हेड होता है ना फैमिली का वो उसका कर्ता होता है और उसके पास ही सारे राइट्स होते हैं. जैसे बोलते हैं पावर ऑफ अटॉर्नी होती है कि उसी वही जो डिसीजन लेगा वो कंसिडर किया जाता है तो उसको बोलते हैं कर्ता. जनरली इट इज़ द हेड ऑफ द फैमिली. कैन परचेज द शेयर्स इंडिविजुअली और जॉइंटली. अभी सब नहीं कर सकते बट इंडिविजुअली सब कर सकते हैं, बट मेनली जो जिसके पास राइट होता है दैट इज़ द कर्ता हु कैन परचेज शेयर इंडिविजुअली, और वो अगर किसी को जॉइंट में लेना चाहता है मेंबर्स को तो ले सकता है, बट HUF कैन नॉट बिकम अ मेंबर. ऑलराइट, नेक्स्ट इट इज ट्रस्ट. अकॉर्डिंग टू न्यू कंपनीज एक्ट अ ट्रस्ट कैन परचेज शेयर्स एंड बिकम अ मेंबर. नए कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग ट्रस्ट को भी एक लीगल पर्सन को के तरीके से रजिस्टर किया जा सकता है अभी के टाइम में, एंड दैट्स वाई दे कैन बाय द शेयर्स. ओके, एंड दे कैन बिकम द मेंबर्स ऑफ द कंपनी. ऑलराइट, नेक्स्ट इज फॉरेनर्स. फॉरेनर्स यानी कंट्री के बाहर के लोग. Any foreigner can become members by holding shares of Indian company. आप बाहर रह रहे हो और आपको इंडियन कंपनीज के शेयर्स खरीदने हैं तो यू आर मोस्टली वेलकम्ड एंड यू कैन बिकम अ मेंबर ऑफ द कंपनी. However, but उसके कुछ कंडीशंस हैं. However, in the event of war or emergency with the native country, a company may suspend the membership and rights of particular person. पर आप जिस कंट्री में रह रहे हो, सपोज यू आर स्टेइंग इन रशिया एंड नाउ यू वांट टू बाय द शेयर्स ऑफ इंडियन कंट्री, पर अभी चलो वॉर डिक्लेयर हो गई रशिया और इंडिया के बीच में, तो आपके राइट्स और आपकी शेयर होल्डिंग को सस्पेंड, आपकी मेंबरशिप को सस्पेंड किया जा सकता है. दिस राइट कंपनी हैज़.
Okay, so if you are a member of सच कंट्री के जहाँ पे नेटिव कंट्री आपकी ऐसी है कि जहाँ से वॉर शुरू हो रही है या कोई इमरजेंसी तौर पे सारे ट्रांजैक्शन रुका दिए गए हैं, तो उस टाइम पे कंपनी के पास राइट रहता है कि ये सारी चीज़ें आपके मेंबरशिप राइट्स और आपके अदर राइट्स कैन बी सस्पेंडेड. Okay, joint holders of the shares. When two or more person holds the shares in the joint names, then their names are jointly recorded in the register of member of the company. अगर आपने jointly ले रहे हो, आप अकेले नहीं ले रहे हो, पर आप joint name में ले रहे हो, husband and wife takes together, and family, and a man and their children, or the women and the children can take the name together, or the friends can buy the shares together, and तो उस टाइम पे रजिस्टर ऑफ मेंबर में jointly आपका नाम आता है. दोनों मेंबर्स या 3 मेंबर जितने भी हैं, आप एक साथ अपना नाम रजिस्टर करवा सकते हो. दे आर इंडिविजुअली एंड जॉइंटली लायबल फॉर द शेयर. इंडिविजुअली और जॉइंटली दोनों लायबल होंगे इन केस एनी लायबिलिटी अराइजेस. फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव सिंप्लिसिटी द कंपनी करस्पॉन्ड विद द शेयर होल्डर हुज नेम अपीयर फर्स्ट. अभी देखो कोई लोग 4-5 जने भी मिलके रहे तो सबको सेपरेटली कंपनी नोटिस नहीं भेजेगी. तो एडमिनिस्ट्रेटिव की सिंप्लिसिटी के लिए कंपनी में करस्पॉन्ड मतलब ट्रांजैक्शन करेगी किसी एक मेंबर के साथ जिसका नाम पहले अपीयर किया जाएगा. ओके, द मेंबर हुज नेम इज अपीयर्ड फर्स्ट, उसको उसके साथ ही कंपनी उसके सारे करस्पॉन्डेंस करेगी. Okay, company sends notice, share certificate, dividend warrant, circular document etc. in his name. कंपनी सारे जो भी उसके नोटिस होंगे, जो भी उसके शेयर सर्टिफिकेट्स होंगे, डिविडेंड वारंट होंगे, सर्कुलर होंगे, डॉक्यूमेंट्स होंगे, वो सारे उसके फर्स्ट जिसका नाम अपीयर होगा उसके पास भेजेंगे. ऑलराइट, so this is for joint holders when one or more person together buys the shares. in that case जिसका नाम पहले अपीयर होगा उसको ही कंपनी अपने सारे करस्पॉन्ड करेगी, उसको ही सारे ट्रांजैक्शन बताएगी. That doesn't mean that the liability is only lies to the first person. It lies to both or 3 or whatsoever people have brought the shares together. उन सब की होगी, पर मेनली इन्फॉर्म सारी चीज़ें फर्स्ट शेयर होल्डर को ही किया जाता है. बिकॉज दे बिलीव दैट अगर आप शेयर साथ में ले रहे हो तो ऑफकोर्स यू ट्रस्ट ईच अदर, सो ओनली विल बाय शेयर्स टुगेदर. ओके, चलो नेक्स्ट वन, इट इज़ कंपनी एंड अदर इंस्टीट्यूट्स. Okay, so these 2 topics we'll be discussing in the next lecture. कंपनी का कंसेप्ट थोड़ा बड़ा है, so we will be discussing that in the next lecture. उसके बाद we'll be seeing the method of becoming a member, कैसे आप members बन सकते हो. ओके, टर्मिनेशन ऑफ मेंबरशिप, कब आपका मेंबरशिप राइट्स आपसे ले लिया जा सकता है, छीन लिया जा सकता है. सो दैट इज़ ऑल्सो बीइंग डिस्कस्ड. ओके, हर एक इस सब्जेक्ट में ना एक अच्छी बात है, हर एक लास्ट में ना आपको व्हाट यू हैव लर्नड इन दिस चैप्टर, तो उसका बेसिक एक क्विक रिविजन है ना आपको दे दिया जाता है. तो आप उसमें से भी एट लास्ट यू कैन जस्ट गो थ्रू सच रिविजन फ्रॉम दिस ओनली. ओके, जैसे इसमें भी दे दिया हु कैन अक्वायर मेंबरशिप, तो उसके सारे जो भी अपने हेडिंग्स थे ना वो उसमें दे दिए. तो आपको शायद कंसेप्ट तो पता होगा जब लेक्चर में सुन रहे हो तो, राइट, पर जब रिवीजन करते हैं एग्जाम आती है तो वी जस्ट नीड हेडिंग नोट टू रिवाइज कि इंडिविजुअल. ओके, इंडिविजुअल में की कंडीशंस मुझे पता है, पार्टनरशिप फर्म है तो मुझे पता है कि पार्टनरशिप फर्म नहीं हो सकती है, पर पार्टनर्स ज्वाइंटली और इंडिविजुअली बन सकते हैं. HUF है तो आई नो व्हाट इज़ HUF, हिंदू एंड डिवाइडेड फैमिलीज़ हैं, उसका कर्ता बन सकता है इंडिविजुअली या जॉइंटली, पर बाकी ऐसे HUF के नाम पे शेयर्स लिए जा सकते नहीं हैं. ट्रस्टीज़, तो ट्रस्टीज़ आई नो ट्रस्टी कैन बाय अ शेयर्स. जॉइंट होल्डर ऑफ शेयर्स में क्या होगा कि ले सकते हैं, पर सारा करस्पॉन्डेंस किसको ऊपर जाएगा, फर्स्ट जिसका नाम अपीयर हुआ होगा उस पर. हालांकि रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों की रहेगी. फॉरेनर्स है तो फॉरेनर्स का मुझे पता है कि फॉरेनर्स कैन बाय द शेयर्स, बट इन केस ऑफ एमरजेंसी या इन केस ऑफ वॉर वो लोग शेयर्स खरीद सकते, उनके राइट्स शायद कंपनी सस्पेंड कर सकती है. सो दीज आर द बेसिक थिंग्स, वो आपको क्विक रिविजन में भी दे देते हैं, सो यू कैन जस्ट रिवाइज फ्रॉम दैट ऑल्सो. एक्सरसाइज में अभी देखो उसके रिलेटेड जितने MCQs है आज ही सॉल्व कर दो.
and here you can see who decides the allotment policy of the share, which element is essential to be a member. तो ये अभी थोड़े बेसिक चीज़ें तुमको आ गई है. So just can start writing the questions which are important in this. अब वो क्वेश्चंस स्टार्ट कर सकते हो. एंड हु कैन अक्वायर मेंबरशिप, सी तो ऑलमोस्ट ये आ चुका है. बहुत आज के दिन, क्योंकि दिस इज़ द फर्स्ट लेक्चर ऑफ दिस चैप्टर, सो बहुत क्वेश्चंस तो नहीं आएंगे ऑब्वियसली, पर जितने आ चुके हैं दैट यू हैव टू डू. स्पेशली दिस वन members एंड डिफरेंस बिटवीन द मेंबर्स एंड द शेयर होल्डर, ये खास करना क्योंकि ये एग्ज़ाम में बहुत बार आता है. और यू नो एज अ कंसेप्ट ऑल्सो व्हेन यू लर्न दिस चैप्टर यू शुड बी नोइंग दीज थिंग्स. Okay, so rest other topics will be continuing in the next class. Okay, so up till this we are keeping everyone. Thank you for watching. Have a nice day ahead.